جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اور ویورز، پاکستان میں ایک بڑی، جسے آپ کہہ لیں کہ جو ملٹری شفل ہوئی ہے، جس میں پاکستان کے جو لیفٹنٹ جنرل فیض حمید ہیں، جو ہو از نون ایز اے ٹاپ اسپائی ماسٹر آف پاکستان، ان کو ان کو کور کمانڈر پشاور لگا دیا گیا ہے، اور جبکہ لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگا دیا گیا ہے۔ لیفٹنٹ جنرل فیض حمید، کیونکہ جو بھی آئی ایس آئی کا ہیڈ ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے، اور اسی طرح جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو بھی جو کمانڈر 11 کور لگایا گیا ہے، جو کہ پشاور اور آبویسلی افغانستان کی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جب 15 اگست کے بعد طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں، تو انہوں نے افغانستان کا وزٹ بھی کیا، تو آئی تھنک ان دیٹ کانٹیکسٹ وہ کیونکہ افغانستان کو بھی اچھے سے سمجھتے ہیں، اور جو پاکستان کی جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں بھی ایز اے آبویسلی ڈی جی آئی ایس آئی ہیڈ اے ویری امپورٹنٹ رول ٹو پلے، آبویسلی انٹیلیجنس میٹرز میں وہ دے ہیلپ دا اسٹیٹ، اور پاکستان میں جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید جو تھے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی واز اے ویری کلوز ٹو دی آرمی چیف، اور بڑے ٹرسٹڈ ان کے پارٹنر تھے وین بوتھ ورکنگ فار کاؤنٹرنگ ٹیررزم ہو یا ریجنل ڈیولپمنٹس ہوں، تو اس حوالے سے اب جو ندیم احمد انجم ہیں جن کو ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کیا گیا ہے، ان کی بھی پوزیشن یہ ہے کہ ان کو آج اگر 6 اکتوبر 2021 کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، تو ان کی جو ریٹائرمنٹ ہے دیٹ از آن دا 12 سپٹمبر 2023۔ سو میرا خیال ہے تقریباً ان کے پاس 2 سال سے بھی کم عرصہ ہے ان کی جو سروس ہے، سو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا جانا بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور جو الیکشنز ہونے ہیں ہمارے وہ بھی اس سے پہلے ہو جانے ہیں۔ سو اف ہی اسٹیز ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی فار دا نیکسٹ 2 ایئرس، جب تک یہ ریٹائرمنٹ ہے، تو اٹ مینس کہ جو پاکستان کے نیکسٹ الیکشنز ہیں وہ بھی انہی کے ٹینیور میں ہوں گے، اٹ سین سو فار۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ جو پاکستان کے جو ٹاپ 4 جنرلز ہیں، جو کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے بعد جنہوں نے ریپلیس کرنا ہے، ان میں فیض حمید صاحب کا بھی نام آتا ہے، ناٹ ان سینس کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دی آرمی چیف، لیکن 4 ایسے جنرلز ہیں جس میں ساحر شمشاد مرزا، جو کہ اس وقت کمانڈر 10 کور ہیں، جو کہ راول پنڈی، کشمیر اور گلگت بلتستان اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایل او سی وغیرہ کو۔ ریسنٹلی جو ساحر شمشاد مرزا تھے، ان کو یہ ڈی جی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز بھی رہے ہیں، اور یہ ڈی جی ایم او بھی رہے ہیں۔ So he is known as a person who might be either chairman joint chief of staff or the army chief. So بڑی اہم پوزیشن ہے ان کے پاس بھی، آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگی، جب آرمی چیف جنرل باجوہ جو کہ 29 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ساحر شمشاد مرزا کے بعد اظہر عباس ہیں، جو کہ ہی از اے چیف آف دا جنرل اسٹاف رائٹ ناؤ۔ اور ویورز، یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیف آف دا جنرل اسٹاف ہوتا ہے، ہی از بیسیکلی وہ سارے ایز اینڈ آئیز اینڈ ایئرز آف دی آرمی چیف، اور وہ سارے جو آرگنائزیشنل اینڈ انٹیلیجنس آپریشنس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے، ان سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک اہم پوزیشن ہے۔ سو اظہر عباس بھی نمبر 2 پہ ہیں، اور نعمان نمبر 2 سے مراد یہ ہے کہ ان دا ہیرارکی، ادروائز ان سب نے ریٹائر ایک ہی دن ہونا ہے۔ پھر نعمان محمود ہیں، جو کہ اس وقت نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں ان کو ریسنٹلی آج ہی آئی تھنک اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ بھی 22 اپریل 23 کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ فیض حمید جو اس وقت کمانڈر 11 کور ہیں، یہ بھی 22 اپریل 2023۔ سو ان چاروں میں سے کسی ایک نے آرمی چیف ہونا ہے۔ آئی ڈونٹ نو ہو از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ آرمی چیف، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں یہ اہم ہیں، اور آبویسلی جس طرح جنرل باجوہ کو نواز شریف صاحب نے پک کیا تھا نیچے سے، اینڈ ہی واز میڈ دی آرمی چیف، اور جو اس سے اوپر والے لوگ تھے سارے دے ہیڈ ٹو، اور ان کو ریزائن کرنا پڑا، ان کو کرنا پڑا، اور آبویسلی بیکاز ان کو وہ سپر سیڈ ہو گئی، یا ان کو پرائم منسٹر نے پک نہیں کیا، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، وہ کیا سوچتے ہیں کہ کس کو کیا ہونا چاہیے۔ اور
अब ये 4 लोग जो हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा और अज़हर अब्बास हैं, जो कि दोनों चीफ़ ऑफ द जनरल स्टाफ हैं, शाहिर रह चुके हैं, अज़हर अब्बास ने इस वक़्त हैं, तो दोनों नॉर्मली जो आर्मी चीफ़ होता है वो सीजीएस भी होता है नॉर्मली। ये ऐसे बहुत सारे केसेस में देखा गया है, क्योंकि ये एक हिसाब की, जब व्हेन यू हैव टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो आपकी ये ग्रूमिंग होती है, जो कि एज ए 3 स्टार जनरल आपकी होती है। बट अगर ये रूटीन में आर्मी चीफ बाजवा के बाद साहिर शमशाद आते हैं, या अजहर अब्बास आते हैं, या नुमान आते हैं, या फैज़ आते हैं, या कौन आता है, ये तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ही पता है, या मिलिट्री हायरार्की को पता होता है क्या है। लेकिन जो डीजीआईएसआई की पोजीशन होती है पाकिस्तान में, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, इन अ सेंस कि हालांकि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते, वो कोई मीडिया पे नहीं आते, सवाए इसके कि जो डीजीआईएसआई फैज़ हमीद थे, व्हेन ही वाज इन अफगानिस्तान एंड ही लैंडेड इन अफगानिस्तान, तो मेरा ख्याल है जो इंग्लैंड का चैनल 4 था, उन्होंने उनकी एक वीडियो बना ली और सवाल जवाब शुरू हो गए, जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर भी थे, तो आर्मी डीजीआईएसआई ने कहा एवरीथिंग विल बी ओके, और वो वहाँ से चले गए। सो नॉर्मली ही डजंट स्पीक टू मीडिया, ये डीजीआईएसपीआर का ही काम होता है। सो आज सारे दिन से बड़ी 2 दिन से बड़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस चल रही थी कि नदीम अंजम जो है वही आर्मी डीजीआईएसआई बनेंगे। अब ये देखना ये है कि जो नदीम अंजम है वो क्या अपनी एक लाइन लेते हैं, क्योंकि हर नया आने वाला ऑफिसर एक नए एंगल से अपनी इनोवेशन या डिपार्टमेंट को किस तरह ग्रूम करना है या कैसे लेके चलना है। जिस तरह फैज़ हमीद ने बहुत सारी, कहा जाता है कि इंटरनली डेवलपमेंट्स अपने अदारे में की, ऑब्वियसली ये सारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, मुझे भी नहीं पता, लेकिन सुनने में आया था कि उन्होंने बहुत कुछ इंटरनली चीज़ों को काफ़ी चेंज किया। अब देखना ये है कि जो फैज़ हमीद है वो कैसे आर्मी डीजीआईएसआई रहे। फैज़ हमीद ऑब्वियसली ही बिकेम वेरी पॉपुलर व्हेन उस वक़्त टीएलपी का धरना 2017 में जब नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक़्त बिकॉज़ इफ माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, और मैं ठीक तरह सोच रहा हूँ, तो उस वक़्त इन्होंने एक जो मिलिट्री थी वो गारंटर बनी थी, और उस वक़्त के जो लॉ मिनिस्टर थे ज़ाहिद हामिद, उनको हटा दिया गया था, क्योंकि टीएलपी इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट कर रही थी और उन्होंने इस्लामाबाद रावलपिंडी ब्लॉक किया हुआ था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा था कि जनाब ये देखें, पाकिस्तान की जो सारी जो कैपिटल है इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, और इन्होंने क्या उसे बोलते हैं, मुल्क का मजाक उड़ा रहे थे। तो उस वक्त इन्होंने बेसिकली फैज़ हमीद साहब ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ही वाज वन ऑफ दोज पर्सन जिन्होंने हेल्प की गवर्नमेंट को, जिस पे इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा था उस वक्त फौज को, कि भाई आप क्यों जो है वो इस तरह गारंटर बनते हैं। और फिर मेरा ख्याल है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट भी आई थी इस हवाले से, जिसपे जो कंडक्ट था लॉ एनफोर्समेंट का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, एस्टैब्लिशमेंट का, उसको डिस्कस किया गया था, और वो फिर एक और बाद में एक और बहस चल पड़ी, जो सुप्रीम कोर्ट के जिस जज ने ये सारी सिचुएशन को रिव्यू किया। बट एनी हाउ, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से ही इज नोन एज द पर्सन कि जो ही इज एन आर्किटेक्ट एंड ऑफ द एंटायर सिचुएशन जो हुई वहाँ पे, जो पर्टिकुलरली पोस्ट यूएस विड्रॉल और तालिबान का जो टेक ओवर था, उसमें पाकिस्तान ऑब्वियसली चाहता है कि हमें अफगानिस्तान के रास्ते से यहाँ पे स्मगलिंग भी ना हो, अफगानी भी ना आए। तो डीजीआईएसआई फैज़ हमीद प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ताकि तालिबान को ये श्योर किया जाए कि दे विल बी गिवन मिनिमम सपोर्ट, जो कि पाकिस्तान की एज ए नेबर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमने ना दी तो हमारे लिए फिर मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर वहाँ से मेजर इन्फ्लक्स होता है तो ये हमारी स्टेट की, हमारी फ़ौज की, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की ये जिम्मेदारी है कि ये बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। और पर्टिकुलरली ये जनरल बाजवा के टेन्योर में जो हुआ, या फैज़ हमीद के टेन्योर में हुआ कि जो वायर भी लगी पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जनरल फैज़ हैं, he's spent a good amount of time in ISI as a 2 star and then as a 3 star, and he worked very deeply with the government, with the Prime Minister Imran Khan के साथ भी बड़ा उन्होंने काम किया है, और आर्मी चीफ जनरल बाजवा के साथ भी बहुत काम किया है। लेकिन एक लेगेसी जो होती है हर जनरल छोड़ के जाता है, मेरा ख्याल है जो लेगेसी उनके जाने के बाद जो नया जनरल आता है वो उसको कैरी फॉरवर्ड उस तरह तो नहीं करता, बिकॉज द नेक्स्ट पर्सन कम्स विद अ न्यू माइंडसेट,
एक नई सोच होती है, हर बंदे का एक अलग एक्सपीरियंस होता है और वो फिर को उसको वहीं से आगे लेके जाने की कोशिश करता है। लेकिन नॉर्मली जब नया आर्मी चीफ आएगा, नया डीजीआईएसआई आएगा, तो नई डेवलपमेंट होगी, नए आइडियाज़ आएँगे, नए माइंड आया होगा। कई लोग समझते हैं ये शायद ऐसे ही होना चाहिए, कई लोग समझते हैं कि नहीं, जो एक पिछला कर रहा होता है उसी को आगे लेके चलना चाहिए, बट ये डिफरेंस ऑफ अप्रोच है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीबॉडी, कोई भी हो, वो ही इज फॉलोइंग एंड ही इज लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। सो फैज़ हमीद एक पॉपुलर पर्सनैलिटी रहे और अभी भी, क्योंकि उन्होंने जो एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो अगर कमांडर 11 कोर गए हैं तो कहा जाता है कि सिंस उन्होंने कभी इससे पहले कोर कमांड नहीं की थी, तो एंड इट इज़ नेसेसरी कि आर्मी चीफ बनने के लिए आपको कोर कमांड करनी होती है। दैट डजंट मीन दैट ही विल बी द नेक्स्ट आर्मी चीफ। इट इज़, जैसे मैंने पहले कहा, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है कि वो किसको पिक करना चाहते हैं। जो नेक्स्ट 4 अहम लोग हैं उनमें फैज़ हमीद ज़रूर फ़ॉल करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ये चारों के चारों बड़े अहम पोज़ीशन में हैं इस वक़्त, और चारों के चारों दे आर इम्पोर्टेंट इन अ सेंस के इनकी ओवरऑल ऑब्वियसली रिटायरमेंट का डेट 22 अप्रैल 2023 है। सो इनमें से जो आर्मी चीफ बनेंगे और जो चेयरमैन जॉइंट चीफ बनेंगे वो तो अगले 3 साल कंटिन्यू करेंगे। बाकी दो जो हैं वो अपने मुकर्रा जो डेट है 22 अप्रैल 2023 वो उसको रिटायर हो जाएंगे। और अगर नीचे से किसी जनरल को पिक किया जाता है, जैसे फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगा दिया जाता है, या मतलब जो भी वट एवर द प्राइम मिनिस्टर थिंग्स, या नुमान महमूद को लगा दिया जाता है, तो ऊपर वाले आई थिंक दे विल रिटायर, वो उसी दिन रिटायर हो जाएंगे। जिस तरह जनरल बाजवा को जब लगाया गया तो जो जनरल इशफाक नदीम थे, उनको वो ही जस्ट गॉट रिटायर्ड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया या रिटायर हो गए, आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रोसीजर क्या होता है। लेकिन फिर बाद में वो उनको आई थिंक किसी डीजी मारी गैस या कुछ लगा दिया गया था, लेकिन वो थोड़े दिन पहले ही उनकी वफात हो गई है, सुनने में आया है। बट ही वाज अ थॉरो जेंटलमैन एंड वंडरफुल ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी। सो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आगे 4 जो जनरल्स हैं, इन्होंने दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और चारों 3 स्टार हैं। चारों की डेट ऑफ रिटायरमेंट एक है, और इन चारों में से किसी एक ने आर्मी चीफ होना। लेट्स सी हु इज़ द नेक्स्ट आर्मी चीफ। बट जो नए डीजीआईएस आए हैं, ये भी कोर कमांडर रहे हैं, और अभी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि ये अगले 2 साल तक हार्डली इस पोजीशन पे होंगे, क्योंकि इनकी भी रिटायरमेंट है, और ये नेक्स्ट इलेक्शंस भी शायद करवा के जाएंगे। और इलेक्शंस जो होता है, वो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए नए चैलेंजेस हैं। वेस्टर्न बॉर्डर पे ज़्यादा चैलेंजेस हैं इनके लिए। ईस्टर्न बॉर्डर पे उस तरह चैलेंजेस नहीं है इंडिया के साथ। वो इस तरह नहीं है कि 2003 का एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, वो कि उसकी वायलेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी देयर इज़ अ काम। लेकिन ओवरऑल बलूचिस्तान, कराची और जो अनरेस्ट है वो उसको देखना ऑब्वियसली होगा। और लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से देयर इज़ अ ह्यूज चैलेंज फॉर द न्यू डीजीआईएसआई, and obviously internal security, political stability, economic security, ये भी they also have to look into it very keenly for the stability of the country. So let's see how is the tenure of the new DGISI, and who is the next army chief in a year almost, क्योंकि अगले साल नवंबर 2022 को आई थिंक आर्मी चीफ बाजवा रिटायर हो रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग टाइम्स इन कमिंग